So there are some things that has really helped me in order to get good with people and to deal with them. So I'm going to share that with you. The very first thing जो बहुत ज़्यादा हम granted लेते हैं, it is the ability to listen. And हमें लगता है ठीक है भाई, सुनना ही तो है, सुन लेंगे, सुनते आ रहे हैं. But it is not that simple. The important part is you should know when to respond and how to respond. When I'm listening to someone, I make sure not a single sentence or not a single word that they have said is getting ignored by me. So I will try to pay close attention. I will ensure that they are getting the signal that I'm listening to them. I'm feeling the situation. I'm 101% in the moment. I'm not thinking something else when they are speaking, or I'm not waiting for my turn to reply, जो ज़्यादातर लोग करते हैं आजकल. You will observe when you're having a conversation with somebody, consciously, subconsciously, if you try to observe it, you will see majority of people are just waiting for their turn to reply, and they call it a conversation, which is normal. But you need to stop yourself from saying unnecessary things, because this is what happens. अगर हम बहुत ज़्यादा you know बैक एंड फोर्थ करते हैं इन अ कॉन्वर्जेसन, तो उसका कोई एक फ्रूटफुल कंक्लूजन नहीं निकल पाता है. सामने वाले के माइंड में ऐसा नहीं जाता है कि मैंने किसी से एक इम्पैक्टफुल कॉन्वर्जेसन करी है, बिकॉज उसको आपने वो लिसनिंग का टच जो है नहीं दिया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी टाइम व्हेन यू हैविंग अ कॉन्वर्जेसन विद एनीवन, from your close ones to your business partners to your customers to your client, anybody in your life, try to give them this feeling that they are being heard, somebody is listening to them. बहुत strong है, बहुत ज़्यादा strong चीज़ है. And you will see after the conversation they will feel कि भाई I felt something different from all these past years when from me talking to people. I never felt like this. This guy is amazing. And on top of that, what you can do to make it a top notch characteristics, what you can do, you can try to remember things and just spontaneously or randomly you can just drop the bits of it. For example, किसी ने मेरे को एक बात बताई और उसने बात के बीच में कुछ बताया जो एक प्रॉब्लम है कि मेरे को एलर्जी है इस चीज़ से. कोई भी एक चीज़ उसने बताई. फिर आफ्टर अ मंथ और टू कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ वो चीज़ उससे मैच कर रही है, तो आप उसको एड्रेस कर सकते हो. हाँ कि तू यार इस चीज़ से दूर रही हो, बिकॉज रिमेंबर यू टोल्ड मी तेरे को एलर्जी है, सो बी केयरफुल विद इट. अगर आपने ये कर दिया कि आपने सुना सामने वाले को और आपने उसकी चीज़ें रिमेंबर करी, लिख लो. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. एक नोट्स बना लो, फ़ोन में लिख लो, आई मेट समबडी टुडे, these are the good things about them, these are the things I can remember. अगर ये प्रैक्टिस कर ली, people will pull towards you. You'll become like a magnet to them, and eventually it is going to help you in your networking, in your business expansion, in your life in general, right? People those who like them और जो उनको स्पेशल फील कराते हैं, राइट? So you can try this. Second thing, when you speak, आपके जो थॉट्स हैं वो आपके वर्ड्स में जो निकल रहे हैं, that should be accurate. Accurate in the sense that should be accurate to the situation. आजकल लोग बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं बट इम्पैक्ट नहीं होता. बातों में वज़न कहते हैं ना हम, कि बातों में वज़न होना चाहिए. उसका मतलब यही होता है कि कम बोल रहे हैं बट इम्पैक्टफुल बोल रहे हैं. So learn to express your thoughts wisely. The way I'm using my words, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, I'm trying to give you the exact meaning
जो मेरे माइंड में चल रहा है। तो इससे बेटर मैं नहीं समझा सकता। ये मेरा बेस्ट है एट दिस मोमेंट। अभी जो मेरा कम्युनिकेशन का लेवल है या अभी जो मेरी खुद के साथ अंडरस्टैंडिंग है, इससे अच्छा वर्ड्स में मैं नहीं रख सकता। सो आई एम गिविंग माई बेस्ट। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, आर यू गिविंग योर बेस्ट? बिकॉज आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, बट जस्ट बिकॉज द चॉइस ऑफ वर्ड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द टोन, हम ख़राब कर देते हैं कॉन्वर्जेशन को। सो बी कॉन्शियस अबाउट इट, हाउ यू आर स्पीकिंग, क्योंकि इट इज़ अ वेपन। बड़े बड़े लीडर्स, if you really want to be powerful, avoid this sound. If you really want to be powerful, you have to learn to influence people, and the only way you can influence people by being a voice, by being good at communicating. So practice it. कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट कर दो, खुद की वीडियोस रिकॉर्ड कर लो। पोस्ट करना है नहीं करना, दैट्स ऑन यू, बट स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और अब मेरे को, इफ़ आई कंपेयर माई ओल्ड वीडियोज़ और 2-4 साल पहले जो मैं जिस तरीके से बोलता था, आज की जो वीडियोज़ होंगी या अब जो मैं बात करता हूँ, ह्यूज डिफरेंस। जस्ट बिकॉज मेरा ये फियर ख़त्म हो गया। तो कम्युनिकेशन एंड पुटिंग द राइट वर्ड्स एज पर द सिचुएशन इज़ वेरी क्रूशल। थर्ड थिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। यू वॉन्ट बिलीव, यूट्यूब पे गोल्ड माइन है। कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो इतने ज़बरदस्त हैं, अनफॉर्चुनेटली उस पर बहुत कम व्यूज़ हैं। अनफॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि वो बहुत अंडररेटेड है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू पीपल और पीपल आर नॉट वॉचिंग इट। गुड साइड इज़ दैट जस्ट बिकॉज बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है, यू कैन टेक द एडवांटेज, यू कैन वॉच इट। इतनी अच्छी अच्छी टेडेक्स टॉक्स हैं यूट्यूब पे, स्टैनफोर्ड के ऐसे ऐसे ज़बरदस्त लेक्चर्स हैं। इफ़ यू सर्च इट, कुछ थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ हैं उस पर, लोग नहीं देख रहे। और कोई फालतू की वाइन्स, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट होगा तो उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं एक दिन में। दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज़। सो उसको कंज्यूम करो, लर्निंग करो। मेरा तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है इन चीज़ों में। नेगोशिएशन की जो स्किल्स होती हैं, परसुएशन होता है, एक सेकेंड, you know, to be able to pursue a goal or your customer, closing skills, ये सारी चीज़ों पे काम करो। It is very important. I'm getting a important call. I'll see you in the next video. Bye.